Hello friends, welcome back to my YouTube channel, that is Class of Biology Ankush. Today we are going to discuss a very important chapter, that is biotechnology, principles and processes. Friends, if you see, biotechnology itself is a unit. Now this unit has two chapters in it, but the application of this particular chapter is varying to different chapters of your syllabus. Yes. What exactly is biotechnology? How it is useful to mankind? Which chapters we are going to study about it? Everything will be discussed in this video. But today, first of all, we are starting with the chapter that is biotechnology, principles and processes. And down the lane, while I am explaining you, we'll clarify each and everything. So friends, let's start today the first chapter of the unit biotechnology. So first thing that we are going to discuss is what is biotechnology. हम define कैसे करें biotechnology, right? So that is what we are going to start with. These are the major topics. Before I get into definition, these are the major topics of biotechnology. The first one is principles. The second one is tools for recombinant DNA technology. अब ये क्या होता है दोस्तों, हम देखेंगे आगे. But ये तीन chapters हैं. ये तीन topics हैं, not chapters. Principles, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, ये सबसे मेन टॉपिक है. आरडीएनए क्या होता है मैं आपको अभी बस 5 मिनट में समझाऊंगा, बट दिस इज द मेन टॉपिक, राइट? एंड द थर्ड टॉपिक इज प्रोसेस. हाउ वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी अबाउट? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस थ्री टॉपिक्स. फर्स्ट, प्रिंसिपल्स, tools of RNA technology, that is recombinant DNA technology, and third one, how actually we are going to produce a recombinant DNA. Now what are all these things? Let's understand. So as I told you, first we will describe what is biotechnology. Biotechnology होता क्या है? So biotechnology can be defined as the use of microorganisms, animals, plant cells or their components. मतलब मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ. Suppose you are preparing a curd at your home, right? आपको दही जमानी है, तो मम्मी क्या करती है? She takes a tablespoon of curd, she mixes it with the milk. अब जब आप उसको मिल्क में डालते हो तो क्या होता है? कर्ड के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उसको बोलते हैं हम LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. दैट बैक्टीरिया एक्ट एज अ कल्चर और वो मिल्क की जो प्रोटीन है उसको कोएगुलेट करके कर्ड में कन्वर्ट करता है. दोस्तों समझो, you are taking a curd, you are mixing it with the milk. Now when that curd is mixed with the milk, those bacteria in curd are coagulating the protein of the milk. पहले वो क्या था? दूध था. अब क्या बन गया? दही बन गया. Reason क्या हुआ? The reason being that कि दूध में से दही किसने बनाया? Who made it? Microorganism. कौन सा microorganism? Bacteria. So when you are using microorganisms, animals or plant cells or their components. Components मतलब सेल्युलर ऑर्गेनल्स, पर्टिकुलरली आप किसी चीज का डीएनए या फिर आप कोई भी जेनेटिक कंपोनेंट यूज करके कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, दैट इज डिफाइंड एज बायोटेक्नोलॉजी. और वो प्रोडक्ट, दोस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर यूजफुल टू ह्यूमन बीइंग्स. जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल प्रोडक्ट्स. देयर आर सो मैनी ब्रूवरीज, सो मैनी वाइनरीज, सो मैनी बियर बेवरेजेस. कैसे बनता है दोस्तों? फर्मेंटेशन. सो फर्मेंटेशन कौन करता है? बैक्टीरिया. So all these products which are made with the help of microorganisms, animals or plant cells or their components which are useful to human beings, ये बहुत important है because इसका industrial application होता है. It is useful to human beings. This is a complete definition of biotechnology. अब word को समझो. Bio itself means life. Technology मतलब technology का use करके we are using those life components मतलब microorganisms. We are using plant cells, we are using animal cells to produce the products that are useful to us. That's biotechnology. Now moving further, these are the principles of biotechnology. What are the main two principles of biotechnology? The first one, it is useful for genetic engineering. The second one, it is used for maintaining a sterile condition. अब ये क्या होता है? अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पता चलेगा. जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. देखो बच्चों,
if I tell you mechanical engineering, क्या होता है वो? You think about auto parts, you think about all those screws, nuts and bolts and everything. That's mechanical engineering. If I tell you civil engineering, you will think of कि नहीं घर बनाना है, architecture involved है, blocks बनाने हैं. That's mechanical engineering. But when I say genetic engineering, it definitely is manipulation of genes. It refers to the manipulation of DNA and RNA. That is basically the components that has the genes. See, my eye color, my hair color, my skin structure, the way I look, the way you look, your parents look, everything is confined to DNA and RNA in certain organisms. ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोड्यूस करने के लिए. तो इनको अगर मैं मैनिपुलेट कर दूं, if I manipulate the nucleic acids, DNA or RNA of any organism, not just human beings, any organism, उसको क्या बोलेंगे हम? Genetic engineering. So basically you are playing with your genes, right? That's genetic engineering. Now if you talk about second sterile conditions, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ sterile condition. अब sterile conditions क्यों important है? मैं जैसे बच्चों एक इंसुलिन, सपोज कोरोना चल रहा है, ठीक है, मैं उसका एक वैक्सीन बना रहा हूँ कोविड-19 के लिए. मान लो द मोमेंट आई एम प्रिपेयरिंग द वैक्सीन, अगर एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उसको कंटामिनेट कर दिया, एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने, दैट विल हैव अ ह्यूज इफेक्ट. वो वैक्सीन बनेगी ही नहीं, और अगर बनेगी इट विल हैव मेनी साइड इफेक्ट. तो स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करने के लिए हमको बायोटेक्नोलॉजी और उसके इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की जरूरत पड़ती है. सो इट रिफर्स टू मेंटेनिंग कंडीशन फ्री ऑफ अनवांटेड माइक्रोब्स. जब मैं स्टेराइल बोलता हूँ, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? वहां पे बहुत कम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन में एक ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, या फिर एकदम बिल्कुल भी नहीं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उस जगह पे नहीं है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? स्टेराइल कंडीशन. सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट रूल्स, टू इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. फर्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है. दूसरा, मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन. स्टेराइल मतलब एक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं चाहिए. जितनी भी वैक्सीन बनती है, मेडिसिन बनती है, जो भी डेवलपमेंट होता है, वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट होता है, वहां पे क्रॉस कंटामिनेशन चलता ही नहीं है. सो दैट इज स्टेराइल कंडीशन. नाउ हमने जब स्टार्टिंग में देखा था रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, अब ये होता क्या है? आपने तो बता दिया बायोटेक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बट व्हाट एक्चुअली इज रिकॉम्बिनेंट? एक सिंपल एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाऊं, रिकॉम्बिनेंट होता है समथिंग दैट इज हाइब्रिड. अब सोचो, री मतलब अगेन, कॉम्बिनेंट कंबाइन करना, दो इंडिविजुअल डीएनए को अलग अलग कलेक्ट करके उनको कंबाइन करना, एक हाइब्रिड डीएनए बनाना, दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए. चलो लेट्स कीप इट इन द वर्ड्स. Recombinant DNA is a DNA created artificially. समझो दोस्तों, ये अपने आप तो होगा नहीं. जैसे मेरा डीएनए निकल गया और किसी और के डीएनए के पास चला गया, उसने बोला चलो हम रिकॉम्बिनेंट, देयर इज नथिंग लाइक दैट. ये कैसे होगा? वी हैव टू डू इट आर्टिफिशियली. मतलब ह्यूमंस करते हैं, साइंटिस्ट करते हैं, राइट? सो आर्टिफिशियली बाय कंबाइनिंग द डीएनए ऑफ टू, या तो आप दो ऑर्गेनिज्म ले सकते हो और मोर ऑर्गेनिजम्स into a single recombinant molecule. मतलब आपने दो डीएनए ले लिए, उनको मिक्स कर दिया, and then you get a recombinant DNA. अब इतना इजी तो है नहीं जैसे आपको दिखता है. तो सर इसमें क्या है? एक डीएनए लिया, दूसरा लिया, and we'll mix it. It's not like that. पूरा चैप्टर, स्टूडेंट्स लिसन टू मी, entire chapter is based on this technology, recombinant DNA technology. डीएनए क्या है पता चल गया? when you are combining artificially, when you are combining the DNA from two or more organisms, उसको हम क्या बोलेंगे? recombinant molecule. What is recombinant DNA technology? It refers to the transfer of a segment of a DNA from one organism to another organism. अब दो डीएनए अगर मैं कंबाइन करता हूँ, सो ध्यान से, एक डीएनए मैंने कलेक्ट किया, दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसको मैंने इंसर्ट किया, तो जिसमें मैं इंसर्ट कर रहा हूं वो हमारा क्या हो जाएगा? होस्ट.
वो क्या हो जाएगा? होस्ट ऑर्गेनिज्म, बिकॉज ही इज होस्टिंग द डीएनए। अगर मैं अपने घर पे पार्टी रख रहा हूँ, सब लोग आ रहे हैं, तो आई एम होस्टिंग द पार्टी। वैसे ही अगर बैक्टीरिया डीएनए को अपने अंदर इंसर्ट करा रहा है, तो वो बैक्टीरिया क्या हो गया? होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो अनदर ऑर्गेनिज्म इज रिफर्ड एज होस्ट सेल्स। तो एक डीएनए हम लोग लेंगे, एक होस्ट सेल के अंदर डालेंगे और उस पर्टिकुलर होस्ट को हम रिप्रोड्यूस करवाएंगे। क्यों? सो दैट वी गेट मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। अब वो क्यों चाहिए, सब आपको समझाऊंगा। डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। हमने क्या देखा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है बच्चों? लेट्स रिवाइज। व्हेन यू आर आर्टिफिशियली मर्जिंग टू डीएनएस of two different organisms and making one single DNA, उसको क्या बोलेंगे? recombinant DNA। और वो जो प्रोसेस है, एक डीएनए को लेके दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर उसको इंसर्ट करना, उसको कंबाइन करना, वो प्रोसेस क्या है बच्चों? डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। So there is two things, recombinant DNA technology, and this can be asked for 1 marks, right? Let's see now. See, पूरा चैप्टर आपको मैं समझाऊंगा एक एक्सपेरिमेंट से। आई विल टीच यू एंटायर चैप्टर, बट उससे पहले मेरी एक शर्त है, आपको एक एक्सपेरिमेंट समझना पड़ेगा। दैट विल मेक इट वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स। आई नो कुछ टीचर्स ऐसा नहीं बताते, वो एक्सपेरिमेंट आपके कोर्स में है भी नहीं, बट मैं अभी इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट आपको पढ़ाने वाला हूँ, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ द चैप्टर। सो व्हाट इज दैट एक्सपेरिमेंट? लेट्स स्टार्ट। बच्चों ये पूरा डायग्राम आप देखो, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। सबसे पहले आप समझ लो कि ये एक्सपेरिमेंट है। लेट मी टेल यू अ स्टोरी। इमेजिन एक बच्चा है, लेट्स इमेजिन कि मेरे अंदर, सपोज वो बच्चा नहीं है, लेट्स टॉक अबाउट मी। मेरी बॉडी में इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। हु इज प्रोड्यूसिंग इंसुलिन? आपको पता है, 11 में आप पढ़ चुके हैं। Which cell produces the insulin? The cell that is beta cells. कहाँ पे located होते हैं? Yes, pancreas. The beta cells of pancreas produce insulin. और आप बताओ बच्चों, इंसुलिन क्यों प्रोड्यूस होता है? Why is insulin produced? सोचो, why is insulin produced? The insulin is produced to reduce the blood glucose level of our body. क्योंकि हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल जो ब्लड में होता है वो कंट्रोल करने के लिए एक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है? सॉरी, इंसुलिन। दैट हार्मोन इज इंसुलिन। और अगर वो कम हो जाता है, अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, तो उसको कौन बढ़ाता है? ग्लूकागॉन। वी हैव स्टडीड दिस। याद करो, मैंने आपको 11 में पढ़ाया था, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन कैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, वो सब। ब्रश अप योर माइंड, right? Try and remember this thing. Insulin produce होता है to reduce the glucose levels. अब मेरे में suppose इंसुलिन नहीं बन रहा है, I am not producing insulin, मेरी बॉडी इंसुलिन नहीं बनाती because of any disorder, तो मुझे क्या होगा? Yes, डायबिटीज होगा, and diabetes is a very bad disease. तो डॉक्टर उस टाइम पे क्या सजेस्ट करते हैं कि I have to take insulin injections. तो इंसुलिन इंजेक्शन जो बाजार में है, इंसुलिन एम्प्यूल्स जो मिलती है, हाउ एम आई सपोज्ड टू प्रोड्यूस दैट इंसुलिन इन द मार्केट? पहले क्या होता था? पहले के जमाने में व्हेन वी वर नॉट हैविंग बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स, द इंसुलिन वाज प्रोड्यूस्ड बाय चर्निंग द पैंक्रियास ऑफ काउज एंड पिग्स। इमेजिन आप पिग, उसका एक पैंक्रिया ले रहे हो, यू आर चर्निंग इट, यू आर स्ट्रेनिंग इट, उसको छानते हैं, and then you get that insulin, वो आप it produces so many allergic reaction and no patient was compliant with that insulin. तो वो चीज एक कंपनी थी, Eli and Lilly कंपनी। You heard it right. कौन सी थी? Eli and Lilly कंपनी। अपने घर से नहीं बता रहा हूँ, this is true. Eli and Lilly company of USA, they produce for the first time genetically engineered insulin. अब जाकर This is the time now you need to understand कि बाहर बायोटेक्नोलॉजी लैब में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन कैसे बनता है। मतलब वो जो इंजेक्शन आते हैं, वो एम्प्यूल्स आते हैं, वो कैसे बनाते हैं,
और ये जो पूरा प्रोसेस है दैट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो लेट्स अंडरस्टैंड. मैं शायद ये पिक्चर दिखाने के लिए आई विल मूव आउट ऑफ द फ्रेम, बट आप ध्यान से सुनना, ऑडियो सुनना. सी, वी आर टेकिंग अ ह्यूमन सेल. अब ह्यूमन सेल में हमको किस किस की जरूरत है? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन. वो जीन हमको कहाँ मिलेगा? बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास में से. तो मैंने वो जीन निकाल लिया, ठीक है. बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया आर हैविंग अ सर्कुलर डीएनए. ये आप 11th में पढ़ चुके हो. उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड. तो नाउ आई हैव टू डीएनएस. दिस इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, but it is considered as DNA, right? It's a part of DNA. It's a gene. कौन सा जीन है? इंसुलिन जीन. ये कौन सा है? बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है. तो दोस्तों हम इस जीन को पर्टिकुलरली इस डीएनए में इंसर्ट करेंगे. तो ये हमारा क्या हो गया? क्लोनिंग फैक्टर हो गया. ये सब आपको पता होगा कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्लोनिंग फैक्टर, होस्ट क्या होता है? I'll teach you. But we'll take a gene, we'll merge it with another DNA. मतलब दो DNAs हमने कंबाइन कर लिए और उनको ज्वाइन कर लिए. तो उस टेक्निक को हम क्या बोलते थे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो नाउ वी हैव अ प्लाज्मिड. बैक्टीरिया का डीएनए हमारे पास है जिसके अंदर कौन सा जीन है? इंसुलिन जीन है. तो ये क्या हो गया हमारा? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. लेट मी टेल यू अगेन. We are taking an insulin gene, we are merging it with the bacterial plasmid, we get a recombinant plasmid. अब दोस्तों recombinant DNA तैयार है. What we are going to do now? एक जीन से क्या पूरे देश का इंसुलिन मिलेगा? मिलेगा? नहीं मिलेगा. तो हमको बैक्टीरिया की मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेगी. So we are going to take this recombinant plasmid, we are going to insert it into a bacteria. तो बैक्टीरिया के अंदर हम अपना जीन डाल रहे हैं. तो वो क्या हो गया? होस्ट. मैंने बोला था ना, पार्टी स्टार्ट्स हियर. बाहर से गेस्ट आ रहा है आपके घर में. तो ये जो बैक्टीरिया है वो क्या बन गया? कॉम्पिटिटेंट होस्ट. नाउ दिस होस्ट, एक से तो काम चलने वाला नहीं है. कितने सारे डायबिटिक पेशेंट हैं. तो हम उसको लार्ज क्वांटिटीज में विल ग्रो दिस बैक्टीरिया इन लार्ज क्वांटिटीज, विल कल्चर इट और उसमें से इंसुलिन हम निकाल लेंगे. जो भी दूसरे प्रोडक्ट्स हैं हमको नहीं चाहिए, हमको सिर्फ क्या चाहिए? इंसुलिन. तो अब नया बैक्टीरिया इंसुलिन के जीन के साथ इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा एंड विल गेट द इंसुलिन. तो सर ये तो पूरा एक्सपेरिमेंट हो गया. चैप्टर कहाँ पे है? चैप्टर के 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स इसमें हैं. देखो, पहला पार्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. होस्ट आपको पता चल रहा है होस्ट क्या होता है, राइट? बट ये चीज क्या है? व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होती है? मैं सिर्फ बोल रहा हूँ डीएनए ले लो, डीएनए इसमें डाल रहा हूँ. अब ये मजाक थोड़ी. हाउ यू आर गोइंग टू गेट द डीएनए? कैंची से काटोगे? आर यू गोइंग टू कट इट विद अ सीजर? नो. टू कट अ डीएनए प्रिसाइजली, सपोज इफ आई टेल यू इंसुलिन का जीन मुझे काट के दो आपकी बॉडी में से, हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? साइंटिस्ट क्या करते हैं या फिर बायोटेक्नोलॉजी लैब में क्या होता है? दे आर यूजिंग मॉलिक्यूलर सीजर्स. दोस मॉलिक्यूलर सीजर्स आर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. कुछ एंजाइम्स को वो लोग कलेक्ट करते हैं. कैसे करते हैं बाद में बताऊंगा. बट दे obtain few restriction enzymes and they use those enzymes to cut the DNA. That enzymes are known as restriction enzymes. मतलब एक डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको कट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए उसको क्या बोलेंगे? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. दे आर आल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर सीजर्स. अभी पढ़ेंगे हम. फिर ये जो बैक्टीरिया का डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए इज नोन एज क्लोनिंग वेक्टर. अब आप समझो क्लोन मतलब क्या? मेरा कोई क्लोन है मतलब कॉपी. क्लोनिंग मतलब टू कॉपी. वेक्टर मतलब याद करो मलेरिया. वेक्टर क्या होता है? इट इज अ डीएनए दैट इज कैरिंग द फॉरेन डीएनए. ये डीएनए इंसुलिन का जो डीएनए जो जीन है वो इसका पार्ट नहीं है, बट इट इज कैरिंग दैट डीएनए, सो इट बिकम्स अ वेक्टर. इट बिकम्स अ वेक्टर. एक एग्जांपल देता हूं. जैसे आपको मलेरिया होता है, राइट?
मलेरिया में आपका जो पैथोजन है वो पैथोजन कैरी करता है क्या, सॉरी दैट पैथोजन इज कैरिड बाय वेक्टर। प्लाज्मोडियम कौन कैरी करता है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, तो मॉस्किटो क्या हो गया, वेक्टर। वैसे ही ये जो जीन है वो कौन कैरी करेगा, प्लाज्मिड। सो दिस प्लाज्मिड इज नोन एज क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट है टू एक्सट्रैक्ट द इंसुलिन। So now there are three important things when you talk about the entire chapter. First thing मैंने क्या बोला, restriction enzymes. दूसरा क्या है, cloning factor. And which is the third thing, competent host. So now friends we are going to start in detail restriction enzymes. But ये इतने जो concepts है आप mind में clear करें, right? उसके बाद हम करते हैं restriction enzymes. वो मैं आपको दिखाऊंगा। See, as I said you, the tools used in production of rDNA कितने हैं? Restriction enzymes, cloning factors, competent host, right? So now we are going to start about restriction enzymes. आराम से पढ़ते हैं, right? देखते हैं restriction enzymes क्या है। ये दो चीज hold में रखो। Let's start with restriction enzymes. Okay. So what are restriction enzymes? मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, they recognize a particular sequence of DNA. जैसे कि एक DNA है, मान लो पूरा DNA है, बीटा सेल का एक DNA है, बट उसमें से हमको क्या चाहिए? We just want that part of DNA जो क्या बना रहा है? इंसुलिन बना रहा है। याद करो एक्सपेरिमेंट। That is why I taught you experiment. We require only a part of a gene. So this restriction enzymes are going to recognize that particular sequence of DNA और उसको वो कट करेगा। It has the ability to cut the DNA at particular site or sequence. So इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? Molecular seizures. So restriction enzymes बच्चों क्या हो गया? It is going to recognize a particular sequence of DNA. Again, it is going to recognize a particular sequence of DNA और उसको it has the ability to cut the DNA at that particular sequence or site. That is known as restriction enzymes. और this enzyme, see, ये पूरा definition हो गया। This enzyme recognize short sequence of DNA as targets for cleavage. Cleavage मतलब to break. Cleavage means काटना, उसको तोड़ना, break करना। This specific base sequence, जो हमको sequence मिला, हमको previous experiment में कौन सा जीन मिला था? इंसुलिन जीन। That sequence is known as recognition sequence. जहाँ से उसको कट करता है, उस sequence को हम क्या बोलते हैं? Recognition sequence. So insulin is produced by the same mechanism. तो उसको काटने के लिए, इंसुलिन जीन को कट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, वो क्या बोलते हैं उसको? Restriction enzymes. That is why it has the name molecular seizures. टोटल बच्चों, पहले तो एक चीज ये एंजाइम आती कहाँ से? This is genetically created into the laboratories, right? हम बैक्टीरिया में से ही ये एंजाइम्स निकालते हैं। There are more than 900 restriction enzymes isolated from over 230 strains of bacteria. मतलब सारी की सारी एंजाइम्स जो हम ले रहे हैं, right? All the 900 enzymes are extracted from bacteria. कितनी एंजाइम्स हैं? 900. Restriction enzyme क्या है? The enzymes that recognize a sequence. सबसे पहले DNA कहाँ से काटना है, वो sequence recognize करेगी, and then it will make a cut, right? So this restriction enzymes recognizes short sequence of double-stranded DNA. उसको target करेगी, it will cut it for cleavage, and वो जो sequence है, उसको recognition sequence बोलेंगे, और enzyme को क्या बोलेंगे? Restriction enzymes, right? मैं ये सारी नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में भेजूंगा, ये पूरा पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन भी भेजूंगा, सो डोंट वरी अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, इट्स कंप्लीटली फाइन, राइट? आप समझ लो, एंड देन यू विल हैव योर नोट्स हैंडी. आई हैव ऑलरेडी सेंड इट इन यू द ग्रुप, राइट? ओके, इफ यू वांट टू गेट मोर सच वीडियोस डेली ऑन योर YouTube, please do subscribe and like my channel, right? Okay, now we are going to start with types of restriction enzymes.
और वो क्या है, कैसे, लेट्स सी नेमिंग उसका कैसे होता है। जैसे मेरे को एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल गई, उसका मैं नाम कैसे रखूँ, हाउ वी आर गोइंग टू नेम द एंजाइम, लेट्स सी। तो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। उसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, राइट। बट ये आप देखें कि जैसे एक एंजाइम है, साइंटिस्ट उसका नाम कैसे देते हैं। पहले तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है बच्चों, द एंजाइम्स दैट रिकॉग्नाइजेस अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड देन क्लीवेज होता है, इट कट्स द डीएनए फ्रॉम दैट सीक्वेंस, दैट इज नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो जैसे इंसुलिन का जीन, फिर से मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, इंसुलिन का जीन काटने के लिए जो एंजाइम चाहिए थी वो कौन सी थी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब आई एम एक्सप्लेनिंग द नेमिंग पार्ट, नोमेनक्लेचर पार्ट बाय टेकिंग वन एग्जांपल। अब देखो ध्यान से देखो, ये जैसे एक एंजाइम है EcoR1, ऐसे ही पढ़ते हैं, फिर से पढ़ो EcoR1। ये 1 क्यों है, इट इज रिटन इन रोमन लेटर्स, ये नंबर है, इट्स 1। Why I have differentiated them in black and red, I'll make you understand. See, E stands for the genus of enzyme. जैसे हम E. coli बैक्टीरिया में से इसको कलेक्ट कर रहे हैं, तो E stands for Escherichia. E stands for the genus Escherichia. Co stands for the species. कौन सी species है, coli, Escherichia coli. And you are very well aware about E. coli bacteria. तो हमने ये एंजाइम कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, फ्रॉम E. coli बैक्टीरिया। R stands for the name of the strain, मतलब कौन सी स्ट्रेन, कौन सी स्पीसीज, E. coli की जो स्पीसीज है उसमें भी अलग अलग स्ट्रेन्स होती है, टाइप्स होते हैं। तो कौन सी स्ट्रेन में से हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है, अब वो साइंटिस्ट जेनेटिकली लैब में मैन्युफैक्चर करते हैं, तो स्ट्रेन का नाम है RY13। क्या नाम है, RY13। ये वैसे आपको कहीं पे भी पूछेंगे नहीं कि RY13 के बारे में डिटेल में लिखो, जस्ट रिमेंबर R stands for the strain, which strain, RY13। अगेन बच्चों, E stands for the genus Escherichia, Co stands for species coli, R stands for the strain RY13। और ये this is not I, don't mistake this letter as I। ये क्या है, ये रोमन लेटर है 1। रोमन नंबर्स जो हम लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं कि इन एंजाइम को कौन से ऑर्डर में हमने एक्सट्रैक्ट किया। मतलब एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला जो एंजाइम मैंने एक्सट्रैक्ट किया होगा, तो उस एंजाइम को हम क्या लेबल देंगे, 1। तो EcoR1, दिस रोमन नंबर 1 इंडिकेट्स द ऑर्डर। ये क्या इंडिकेट करता है, द ऑर्डर इन विच द एंजाइम्स वर आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। मतलब अगर जो पहली एंजाइम एक्सट्रैक्ट की है तो हम क्या लिखेंगे, रोमन नंबर 1, रोमन नंबर, रिमेंबर दैट। अगर दूसरी बार हम एंजाइम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या लिखेंगे, EcoR2। तो दिस इज ऑल अबाउट द नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। EcoR1, E stands for genus, O stands for species, right, coli, R stands for the strain and 1 stands for the order in which it is extracted, right। तो आज हमने क्या पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, that when you are using microorganism, plant, animal cell or its component to obtain the products जो किसको यूजफुल है, हमें, we are very selfish, किसको यूजफुल है, humans को, that is बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम गए, हमने सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ा वो था रिकॉम्बिनेंट डीएनए और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के लिए जो सबसे पहला टूल चाहिए वो हमने आज स्टार्ट किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कितनी होती है, 900, और उसका नेमिंग कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। Do subscribe and like my channel. Stay home, stay safe, and keep in touch. We'll make biology interesting together. Thank you. Bye. Jai Hind.